चरणन की मोह लागे, ओ मोह लागे लगाना गुरु चरणन की मोह
शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध प्रेम
श्री राधे ब्रजजन मन सुखकारी राधे श्याम 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 श्री राधे ओ श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्री राधे ब्रजजन सुखकारी राधे श्याम श्याम राधे सुंदर वदन कमल दल लोचन पाके चित वन हरि सुंदर वदन कमल दल लोचन पाके चित वन हरि मोहन बंसी बिहारी राधे श्याम 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 राधे श्री राधे ब्रजजन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम राधे मोर मुकुट मकरादित कुंडल करे गजंती माला मोर मुकुट मकरादित कुंडल करे गजंती माला चरण नंदुर रसाल राधे श्याम 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 राधे
Hare
certainly if we have Good news for English students. She's going to speak English. ओम ज्ञातिभिरान्धस्य ज्ञानेन्द्रशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। I take my humble obeisance in the lotus feet of Sri Srimad Bhaktivedanta Siddhanta Goswami Maharaj Ji and Pujyapad Madhav Priya Prabhu Ji and Guru Parampara. All the present Vaishnavis, please accept my Dandavat Pranam. Today I am going to tell the story or Katha of Prahlad Maharaj. There lived a demon called Hiranyakashipu and his wife Kayatu. They were blessed with a son called Prahlad Maharaj. And as usual, demons enemy is Bhagwan, which is Vishnu. So he said that I need some powers kill Vishnu. So Hiranyakashipu decided to do the austerity of Brahmadev. So he went into the forest and started doing the austerity of Brahmadev. As well, while going, Kayadu was going. So Indradev wanted to kill Kayadu because she was having a baby. As usual, the father was so dangerous, so as usual, the son will be also dangerous. So he wanted to kill Kayadu. But Narad Muni came there and said, Indra, you are doing wrong thing. He is a devotee. So as Indra listened this, he was shocked and he took 4 parikramas of Kayadu. And he went away. Now Narad Ji said, Kayadu, come to my ashram, I will tell you the Bhagavad Katha. So Kayadu went there and listened the Bhagavad Katha. As Hiranyakashipu did the austerity or tapasya for 60,000 years. By that time, Narad Muni told the Bhagavad Katha to Kayadu for 60,000 years. As Kayadu was listening, so the baby Prahlad Maharaj was also listening the Bhagavad Katha. So when Hiranyakashipu was doing the austerity, so ants, some insects made holes in his body and made them home. Only bones were left. They have eaten their skin and all that things. So Brahma Ji was satisfied with his austerity and showered a little water from his kamandal. And he said, Hiranyakashipu, I am satisfied with your austerity. What power do you need? Hiranyakashipu said, I need my the power to be Aman. He said that even I do not have this power, so how can I give it to you? So Hiranyakashipu was very clever. He said, okay, so please give me this power that I should not be killed by any person or any animal. I should not be killed inside the house or outside the house. I should be not killed in the sky or on the earth. I should be not killed
day or night I should be not killed by any astra or any shastra. So Brahma ji said, Evam astu. This thing happened. So Hiranyakashipu thought that now nobody can kill me. As he came back to the palace, the Prahlad Maharaj was born. Now, Prahlad Maharaj was sent into the school and where Shant Amar were giving the teachings. That Vishnu is our prey, Vishnu wants to kill us. They were giving these teachings. But Prahlad Maharaj did not listen to them and was taking the name of Bhagwan. So, after some time, Hiranyakashipu called Prahlad Maharaj in the palace and said, what teachings have you learned in the Gurukul or school? So he said that Vishnu is our Bhagwan. We should pray for Vishnu. As he listened to this, he called Shant Amar and said, what teaching are you giving to my son? Teach him nicely. So Prahlad Maharaj was again sent to the school. So now again these teachings were given to Prahlad Maharaj. But now also Prahlad Maharaj did not listen to the teachings. One more time, Hiranyakashipu called Prahlad Maharaj. He asked the same thing and Prahlad Maharaj replied the same things. So he threw Prahlad Maharaj from his lap and said, he is our enemy. He is praying for Vishnu. So now Hiranyakashipu started torturing his son Prahlad Maharaj. Now, Prahlad Maharaj was always safe. So Hiranyakashipu said, which power is saving you? So he said the power which is given by Vishnu is giving both of us the power. So he said, where your Vishnu lives? He said, everywhere. So he said, in this pillar also. So he said, yes. Prahlad Maharaj replied, yes. He lives in this pillar also. So Hiranyakashipu broke the pillar with his gadha and Narsingh Bhagwan appeared. Bolo Narsingh Bhagwan ki jai. They have a long fight, and after some time, Narsingh Bhagwan took Hiranyakashipu on the door frame, and he said, I know your power. It's not night and it's not day, it's evening. You are not in the sky or on the earth, you are on my lap. I will not kill you from any shastra or any astra. I will kill you from my sharp pointed nails. I am not any person or animal. I am half lion and half man. You are not inside the house or outside the house. You are on the door frame. From that, Narsingh Bhagwan teared the stomach of Hiranyakashipu and killed him. So when Narsingh Bhagwan killed him, so he said that, but Narsingh Bhagwan's angerness did not stop. He said he was very angry and the whole Prithvi was destroying. He was destroying everything. So now Devtas, Brahmadi, everyone was very scared that if Prabhu will not get the peace, so the whole earth will be destroyed. So they all said that Prahlad Maharaj, he came for you for your protection. So please you only go to your Prabhu and make him the peace. So now all the Devtas and Prahlad Maharaj went to Narsingh Bhagwan and said, please get peace, please have a peace in yourself. So as Narsingh Bhagwan saw Prahlad Maharaj, he said, Prahlad, you are my real devotee. You think that
if I want to kill you, so I will kill you, but if I want to save you, so I will save you. You thought this thing. So they were Narasimha Bhagwan was very happy and said, tell me which power do you need? He said, I am not a shopkeeper that I will say that I will do the bhakti, and instead of bhakti I will take some powers. So that time Narasimha Bhagwan was very happy and satisfied with the Prahlad Maharaj. Hare Krishna. Vansha kalpataru vaishnava tata sankalpaye vajo patita naam pavanage vaishnave mandarana. Very good. हमें तो अंग्रेजी आती ना, समझना है क्या बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग, ये सबसे बड़ी बात है। फोन किसका बज रहा है? फोन किसका बज रहा है? बोलो श्री राधा माधव की जय। मतलब है बोलो श्री राधा रानी की जय। राधा नाम परम सुखदाई, राधा श्यामा नाम परम सुखदाई, मन में तेरी बसाती
के मैं कहीं नहीं जाऊं ब्रज राज के कहीं नहीं जाऊं ब्रज राज के मैं कहीं नहीं जाऊं ब्रज राज के कहीं नहीं जाऊं संत जनन के दर्शन पाऊं संत जनन के दर्शन पाऊं जग से प्रीति लगाती जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Oh Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jai Radha Madhava Kunj Bihari, 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 Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Vrajadana Yashodanandana Vrajadana Yamuna Tira Jai Radha Madhava Kunj Bihari, 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 Kunj Bihari, Ramana Bihari, Ramana Bihari, Girivaradhari, Ramana Bihari, Girivaradhari, Ramana Bihari, Girivaradhari, Ramana Bihari, Girivaradhari, Girivaradhari, Rasa Bihari,
गिरिवरधारी रास बिहारी रास बिहारी विनोद बिहारी विनोद बिहारी कुंज बिहारी विनोद बिहारी रमण बिहारी मंगले राधा राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि 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 बोल गौर प्रेमानंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल गौर प्रेमानंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल
नंदन गौर हरि की जय, श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री माधव तिथि कार्य तिथि की जय, व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय, श्री पाप मोचनकारी श्री की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै समादये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। विराग विद्या निज भक्ति योगम शिक्षाविकटं सपुरुषं पुराणं श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिस्तमं प्रपन्ने त्वत्त्वास्तु दुस्तज्य सुरेक्षराज लक्ष्मी धर्मयिष्ठ आर्यवचस् यतकारणरम्यं मायामृगं दैत्यं शतमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथ उठाइए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरुदेव और समस्त गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मैं अपना संख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। मेरे बीच में, हमारे बीच में मेरे सतीर्थ श्रीपाद महादेव प्रभु जी के चरणों में मैं संख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर आए सभी ब्रह्मचारी, सभी वैष्णव वैष्णवी और सम्मान्य अतिथिजन, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। श्री राधा माधव गौड़ीय मठ के इस प्रांगण में प्रत्येक एकादशी बड़े सुंदर भाव से मनाई जाती है और बड़े बड़े दूर से यहाँ पर भक्त लोग सुंदर ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं। आंखों से भी दर्शन करते हैं और कानों से भी दर्शन करते हैं, ये विशेषता है। दूसरे मंदिरों में आंखों से दर्शन होता है, लेकिन इस मंदिर के प्रांगण में नेत्रों से अथवा कानों से भी दर्शन होता है। श्री माधव प्रिय प्रभु जी यहाँ पर हर एकादशी को कथा सुनाते हैं। आज इन्होंने मेरे को ही अवसर दिया कि कथा सुनाने का। आप लोग तो अब तक परिपक्व हो चुके होंगे कि एकादशी का अर्थ क्या है और एकादशी का इतना महत्व क्या है। संसार के सारे व्रत एक और रख दो और श्री एकादशी जी को एक और रख दो, तो सभी व्रतों में सर्वोपरि, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ श्री एकादशी का व्रत है। और वो क्यों है? क्योंकि इस व्रत के संबंध में कहा गया, माधव तिथि भक्ति जननी। ये एकादशी माधव की तिथि है, श्री भगवान श्री राधा माधव जी की तिथि, और भक्ति को प्रसव करने वाली है, भक्ति को जन्म देने वाली है। अर्थात जो इस तिथि को सुष्ठु रूप से तप करके, नाम करके और व्रत करके पालन करता है, उसको निश्चित रूप से भक्ति की प्राप्ति होती ही है। ये निश्चित है, क्योंकि ये भक्ति जननी है, ये भक्ति को प्रसव करने वाली है।
एकादश इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करना। श्री कृष्ण, ये तिथि को माधव तिथि, मतलब इस तिथि पे श्री माधव वास करते हैं। उनके निकट वास करना आज के दिन बहुत सरल हो जाता है। हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक है मन। ये मन ही है जो इस इंद्रियों को संचालन करता है, आदेश करता है। मन कहता है कि आंखों को देख ले कितनी सुंदर कोई वस्तु है, कोई बहुत सुंदर सुंदरी है। नेत्र मन आदेश करता है और नेत्र वहां चले जाते हैं, आंखें वहां चली जाती। मन आदेश करता है कर्मेंद्रियों को, सुन लो कितनी अच्छी बात है, ये किसी की निंदा है, ध्यान से सुन लो। मन कहता है पैरों को, चलो घूम कर आए इधर उधर। कहां घूम कर आए? शिमला मनाली। मन जैसा कहता है इंद्रियां फिर वैसे ही उसका पालन करती हैं। तो मालिक कौन है? मन मालिक है। तो एकादशी तिथि के दिन क्या करना कर्तव्य है, आज सब सुनकर जाना। भागवत जी में बड़ी सुंदर बातें बताई। अब इंद्रियां तो पशुओं की भी होती हैं, उनके भी तो आंख कान पैर होते। अंतर ये उनके 4 पैर और हमारे कितने? जो एकादशी तिथि को अच्छे से पालन करता है उसके 2 हाथ नहीं, उसके 4 हाथ हो जाते हैं। और जो एकादशी तिथि को पालन नहीं करता उसके 2 पैर नहीं, उसके 4 पैर हो जाते हैं। समझ आई बात? हमारे कितने पैर हैं? 3 4 2 पैर। जो एकादशी को पालन नहीं करता और उस दिन पाप क्रिया को करता है, उसको भगवान बड़ी कृपा करते हैं, उसको 4 पैर दे देते हैं। मतलब क्या हो जाता है? पशु बन जाता है। और जो एकादशी तिथि पालन करता है, अभी हमारे 2 हाथ हैं, भगवान 2 और लगा देंगे। 4 हाथ का मतलब क्या? वैकुंठ में वास होगा, श्री वैकुंठ श्री गोलोक में वास प्राप्त हो जाएगा। अब सबकी अपनी अपनी इच्छा है। 4 हाथ चाहते हो कि 4 पैर चाहते हो? 4 हाथ। कोई है 4 पैर वाला? है कोई? 4 हाथ वाले कौन है? अच्छा, तो ध्यान से सुनो, भागवत जी में क्या कहा? श्री सुत उवाचा, श्री सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं, तरवो की न जीवंती वस्त्रम किम न शोषण न खदंती न महंती किम ग्राम्य पुष्प अपारे। बड़ी सुंदर बात है, देखो क्या कह रहे हैं। क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? हमारे आसपास बाहर कितने पेड़ हैं, ये मरे हुए कि जीवित हैं? तो क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? रहते कि नहीं? हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ। अच्छा, कभी वो देखा, इधर सेक्टर 16 में है, लोहार की नौकरी होती है, लोहार वो चलाता है ना, तो लोहार की जो धोकनी है, क्या वो श्वास नहीं लेती? तो उसमें देखना हवा निकलती है, ऐसा लगता है श्वास ले रही है। क्या गांव के अन्य पशु आहार अथवा मैथुन नहीं करते? पशु करते क्या है? कभी देख लो, सारा दिन कभी बैल, सांड, गाय, कुत्ता, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। जरा सोच कर देखो वो सोच क्या रहे होंगे। मैं गाड़ी में बैठा सोच रहा था, एक बच्चों से बातें कर रहा था, सांड जा रहा था, मैंने कहा विचार करके देखो ये क्या सोच रहा होगा इस समय, बस चले जा रहा है। उसकी सोच एक ही जगह सीमित है, कहां पर खाना मिल जाए बस, और जब पेट भर जाए तो कहां बच्चे उत्पत्ति कर दो, बच्चे पैदा कर लो, इसके अलावा कोई सोच ही नहीं है। समझ आई बात? हमको पशु रहना है कि मनुष्य रहना है? बस, तो हमारी सोच इससे ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सिर्फ खाना ही और बच्चे पैदा करना ही और फिर उनको पाल पोस के बड़ा करना ही और सारा जीवन उन्हीं के लिए चिंता करते रहना ही और फिर करते करते मर जाना, बस इतना ही जीवन है। इतना सस्ता है, इतना आसान है। पहले बच्चे जन्म दो, फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ, फिर उनका विवाह करो, अरे उनको उनके हाथ पे छोड़ दो, नहीं, बुढ़ापे तक चिंता रहेगी, बुढ़ापे तक चिंता रहेगी।
इसलिए श्री शंकराचार्य पाद जी ने कहा, बालस्तावत ईड़सक्ता तरुणितावत तरुणिरक्ता वृद्धस्तावत चिंत मग्ना पर ब्रह्मपि कोपि न मग्ना भज गोविंदम गोविंदम भजम मूढ़मते। बाल्य जो व्यवस्था होती है, छोटे छोटे बच्चे, उनको खेलना ही अच्छा लगता है, खिलौने। अब वो बच्चा जब 16-17 साल का होगा, उसको खिलौने अच्छे लगते हैं, देखता भी है उसकी तरफ। एक मिनट अनाउंस करें तो कुछ लोग इस तरफ हो जाएं, कुछ लोग आगे आ जाओ, कुछ लोग उधर हो जाओ, और बीच में भी जगह दे के बैठे बीच में लोग थोड़ा आ रास्ता सकते दे दो। अरे हो जाओ, थोड़ा हिल जाओ। इस तरफ आ जाओ, फर्श पे आ जाओ। हाँ, फर्श पे आ जाओ, कोई चिंता नहीं, बीच में रास्ता दे दो और थोड़ा इधर घूम जाओ। सारे वहीं गेट पे बैठ जाते हैं, इधर आ जाओ। जो गेट पे बैठेगा उसकी चप्पल बाहर चोरी हो जाएगी आपसे। इधर आ जाओ। तो बच्चों को खिलौना अच्छा लगता है। 18-20 साल की आयु हो गई, खिलौना पसंद आएंगे, पड़े रहते हैं ऐसे ही। फिर आकर्षण, जगत का आकर्षण, फिर वो ही फंसा देता है। और जब वृद्ध काल आता है, जब कोई वृद्ध हो जाता है, बूढ़ी हो जाते हैं, तो उस समय खिलौने से खेलने का मन करता है या आकर्षण होता है? मतलब ही नहीं। उस समय उस आयु का जो स्वभाव है चिंताओं का भार रह जाता है। 3 आयु ऐसे ही व्यर्थ बेकार हो जाती है। बाल्यावस्था खेलने में, यौवन अवस्था आकर्षण में, और वृद्ध अवस्था चिंताओं में। लेकिन श्री शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पर ब्रह्मपि कोपि न मग्ना। कोई श्री भगवान को कोई चिंता करना ही नहीं चाहता और अपनी आयु को ऐसे ही बेकार कर देता है, जैसे हाथ में रेता ले लो और रेत कैसे उंगलियों से निकल जाए, कुछ बचता ही नहीं। तो करना क्या है फिर? इतनी बात तो समझ आ गई। भज गोविंदम गोविंदम भजम मूढ़मते। हे मूर्खो, गोविंद का भजन करो। हे सुमंद मतयो वाले, गोविंद का भजन करो। ऐसा हमारे गुरुजन हमको आदेश दे रहे हैं। जो हरि भजन ना कर आहार और निद्रा में ही अपना समय बिताते हैं, वे नर आकार में पशु ही हैं। जो खाने में और इंद्रियां संतुष्ट करने में, भोग करने में अपना समय निकालते हैं, वो 2 पैर वाले ही 4 पैर वाले हैं। वो 2 पैर वाले ही क्या है? पशु हैं। उनको पशु ही बोला गया। एक बार हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी, हमारे एक बहुत बड़े आचार्य, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, कलकत्ता में कथा सुना रहे थे। जब कथा सुना रहे थे तो बहुत बड़ा उनका प्रोफाइल था, मैजिस्ट्रेट थे, तो बड़े अच्छे अच्छे लोग उनसे कथा सुनने आते थे। तो एक दिन एक विद्वान ने आकर कहा, आप तो साधु हो ना, तो कलकत्ता शहर में क्या कर रहे हो? साधु का स्थान तो जंगल में होता है, वन में जाओ, वहां पर वास करो। शहर सिटी तो आप लोगों के लिए नहीं होती, क्यों खटपट यहां करते रहते हो, लोगों को बोलते फिरते हो ये करो ये करो। भक्ति ठाकुर जी ने क्या उत्तर किया? बोलते मैं जंगल में ही वास कर रहा हूं, ये वन ही है। समझ रहे हो? और जो जंगल, जो वन है, जहां पर साधु रहते हैं, वो वास्तव में शहर है, वो सिटी है। क्योंकि शहर का मतलब क्या होता है? जहां पर सभ्य लोग रहते हैं, ठीक है ना? तो वन में जहां साधु रहते हैं वो सभ्य लोग रहते हैं, और शहरों में सब 2 पैर वाले पशु। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी उन लोगों को गाली दे रही है जो भजन नहीं करते, उन लोगों के लिए। लेकिन जो एकादशी का व्रत करते हैं, श्री राधा माधव जी का दर्शन करते हैं, जो हरि नाम करते हैं, ये गाली उनको लेनी है। ये भी एक गाली है। जैसे मैं कितनी बार बोलता हूं, एक गाली होती है रिक्तमती। रिक्तमती क्या मतलब होता है? किसी को बोल दो तू बड़ा बेवकूफ है, अच्छा लगता है सुनने में? नहीं अच्छा लगता ना? और बोल दो तू कितना रिक्तमती है, कितना अच्छा लगता है, वाह
क्या टाइटल दिया है हमारा रिक्तपति, बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। ऐसे ही 2 पैर वाला पशु भागवत जी ऐसे गाली दे रही है जो भजन नहीं करते उनके लिए। और सुनो, श्री सूरदास जी ने अपने पदों में एक पद में अपने आप को दीनता दिखलाते हुए गाली दी, परंतु वो गाली हम लोगों के लिए है। श्री सूरदास जी कहते हैं, जिसने ये शरीर दिया, मेरे को अभी स्मरण नहीं है, जिसने ये शरीर दिया, जो तन दियो ताही विसरायो ऐसो नमक हरामी। ऐसो नमक हरामी, ये अच्छा शब्द है ये। अपने आप को गाली दे रहे हैं। जिसने ये शरीर दिया, जो मेरा मालिक है, मैं उसी को ही नहीं पूछता और बारे सारे संसार को पूछता हूं। बड़ी अच्छी बात है, जिसने शरीर दिया। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूं, बार बार सुना होगा आप लोगों ने कथा में। मान लो मेरी दोनों किडनी खराब हो जाएंगी, मैं जी नहीं सकता। जीने के लिए एक तो चाहिए होती है कि नहीं? मैं अपने एक मित्र के पास गया, भाई तू भी एक में जी सकता है, मैं भी जी सकता हूं, अपनी एक किडनी मेरे को दान दे दे। सोचो, 2 मिनट दिमाग पर थोड़ा जोर लगाओ, ये 2 किलो का जो है इस पे थोड़ा भार लगाओ कि अगर मान लो हमारे में से किसी को भी ऐसी कोई असुविधा हो जाए, भगवान न करे हो, लेकिन हो जाए तो, और कोई आगे आकर हमको एक किडनी का दान करता है, वो भी जी सकता है, हम भी जी सकते हैं। हम सारी उम्र उसको भूलेंगे, सारा जीवन उसको कभी भूलेंगे? हमेशा याद रखेंगे और रोज उसका धन्यवाद करेंगे, तेरे कारण मैं जीवित हूं, है कि नहीं? तुम्हारे कारण मैं जीवित हूं। अंतिम श्वास तक उसका धन्यवाद होगा क्या नहीं? हाँ कि नहीं? तो जिसने एक किडनी दान की उसका इतना धन्यवाद, और जिस भगवान ने 2 किडनी, एक लीवर, लंग्स, आंखें और क्या क्या, गॉल ब्लैडर, कान, बाल, यहां तक कि आईब्रोज भी दी। सोचो किसी की ना हो तो कैसा लगता है? सुंदरता है ना इससे। कान दिए ना, हाथ दिए ना, हाथ के आगे नाखून भी दिए। नाखून ना हो तो पता कितना गंदा लगेगा शरीर, सारा दिन पसीना टपकता रहेगा। ये नाखून सारी गंदगी को ऐसे यहां धारण कर लेते हैं। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया और इतना अच्छा सब कुछ करने के लिए, तो फिर नमक हरामी ना हो तो फिर और क्या हो? एक व्यक्ति ने एक किडनी या हार्ट डोनेट कर दिया, सारा जीवन उसको धन्यवाद देंगे। और जिस भगवान ने इतना सब कुछ दिया, उसका धन्यवाद कहाँ है? उनका थैंकफुल, उनके धन्यवाद कहाँ है फिर? और फिर ऊपर से आकर कहोगे कि तूने किया तो किया, क्या दिया तो दिया। सुनकर मन बड़ा अच्छा लगता है, हाँ हमको ये करना है। होता है क्या नहीं होता? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस समय कथा में हमारा जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो एक्टिवेट हो जाती है और इसलिए अच्छे अच्छे सदविचार आने लग जाते हैं। और सदविचार बुद्धि से ही होता है। भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम। लेकिन यहां से मंदिर से बाहर 10 मिनट बाहर जाने पर बुद्धि तो गौण हो जाती है, मन प्रभावशाली हो जाता है। और जैसे मन प्रभावशाली होता है तो इंद्रियों को आदेश देना आरंभ हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया होती है। समझ आई बात? इसलिए एकादशी के दिन 11 इंद्रियों से श्री भगवान की सेवा करना। 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन। समझ आया? तो कैसे करना है पहले इसके सुन लो। आगे क्या कह रहे हैं सुनो। बिले बट उक्रमे विक्रमे ये न कर्ण पुट नरस जीवासति दाटु एक व शुभ नाच उपगाय और गाय गाथा। ये भी बात सुन लो। सुन रहे हैं सब ध्यान से? सुन रहे कि नहीं? जो सुन रहे हैं बोलो हरि बोल। सुन रहे हो?
सारे ही सुन रहे हैं। बिले बट उक्रमे विक्रमे, सुनो क्या कह रहे हैं। ये भगवान ने जो कान दिए हैं, इसका दो काम है। कान का क्या काम होता है, और दूसरा जानते हो, ये बॉडी को बैलेंस बनाता है, एयर बैलेंस। ऐसे भगवान ने सृष्टि के मनुष्य शरीर की ये दो जो छिद्र है ना, सुनने का काम तो मुख्य है, और दूसरा काम क्या है, एयर बैलेंस बनाते हैं ये दोनों काम। जनार्दन महाराज बोलते थे चंडीगढ़ में चश्मा लगाने के लिए भगवान ने बनाया। ये तो बड़ी अच्छी टीका सुनी आज। कान क्यों बनाए, चश्मा लगा रखने के लिए। बिले भट उक्रमे, उक्रम मतलब क्या होता है, भगवान का, श्री कृष्ण का एक नाम है उरुक्रम। जिनके बहुत सारे गुण हैं। भगवान गुणशाली है कि नहीं, बहुत गुण है भगवान में। तो वो जिनके अंदर बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण है, और जो गुण कभी क्षीण नहीं होते, उनको उरुक्रम कहा जाता है। तो बिले बट उक्रमे विक्रमे, ये न कर्ण पुरट नरस्सा। मनुष्य, पुरुष और स्त्री सबके लिए कहा। कान को, इस छिद्र को यदि भगवान की कथा में नहीं लगाया गया तो इसकी तुलना किससे की गई, वृक्ष के जड़ में जैसे सांप रहता है, ये वो छेद है, ये वो होल है, वो सांप की कोटर। दोनों कानों के छिद्र बिल के समान व्यर्थ ही हैं, ये कान। दूसरा सुनो, जीवासति धातु के एवं श्रुत, ये जो जीवा है इसका क्या काम है, बोलना और स्वाद लेना, है कि नहीं। ये जीवा यदि भगवान के नाम और उनकी कथा में ना लगाया जाए तो फिर ये जीवा की तुलना किससे की गई, मेंढक से। मेंढक क्या करता है, बोल के दिखाना कैसे करता है, बोलो बोलो, सारा दिन यही तो करते हो। सारा दिन ये जीवा टर 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 करती है। तो देखो मेंढक जहां टर, ध्यान से सुनो, मेंढक जहां टर 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 करता है तो सांप को ढूंढने में आसानी होती है कि कठिनाई होती है, कितना आसान हो जाता है। तूने खुद ही निमंत्रण दे दिया, आ जा और मेरे को खा ले। अब देखो जीवा और कान की माने बात बताई, कितनी दूरी है दोनों की, देखो जीवा एरी और एक उंगली दूर कान है, और यहां टर्टर किया तो ये जो सांप है ना, ये खा जाएगा इसको। इससे यहां पर सुध गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिले बट उक्रमे विक्रमे, जो भगवान के विक्रम, उनकी लीलाओं को, कथा को नहीं सुनता, श्री सच्चिदानंद श्री राधा माधव जी की, जो नहीं सुनता वो सांप के बराबर है। और जीवा कैसी है, मेंढक के समान। तो चाहेंगे इस जीवा को टर्टर करने से हम स्वयं ही अपनी आपत्ति को निमंत्रण देते हैं, हे मेरी विपत्ति, हे मेरी आपत्ति, आजा और मेरे को खा ले। चाहते हो ऐसा, ग्रास कर ले मेरे को। अगर इससे बचना है तो एक आपको आज एक सूत्र बता देता हूं। यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जो घर में अपनी माला करते हैं। कौन कौन माला पे जाप करता है बताना, माला पे जाप करता है, अच्छा नीचे करो। कौन कौन नहीं करता ये बताओ, ये पूछना चाहिए था मेरे को। हाथ जरा ऊपर करो, शर्माओ नहीं। क्यों नहीं करते ये बता दो। ऐसी क्या आफत है, जो करते हैं और जो नहीं करते, दोनों की बात सुन लो। जो करते हैं और जो नहीं करते भगवान का नाम, अपनी जीवा को आदत डालो, करके देख लेना। इसका अभ्यास किया गया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अपनी जीवा को आदत डालो, बिना माला पर
कभी जैसे गाड़ी में हो, रसोई में हो, या कभी चल रहे हो, कुछ कर रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस जीवा को मैं गारंटी दे रहा हूं, आज आपको गारंटी दे रहा हूं, 1 महीना आप, अच्छा 1 महीना नहीं, 10 दिन तक प्रयास करके देखो। जब खाली समय हो इसको प्रयास करके देखो, ये जीवा अपने आप ही यही दोहराने लग जाएगी। और नहीं होगी तो आके प्रभु जी को पकड़ लेना, क्योंकि मैं तो भारत में होऊंगा नहीं। ठीक है, मैं तो होऊंगा नहीं, लेकिन कोशिश करो कल से ही, आज से ही प्रसाद पाने के बाद जब घर जाओ, आदत डालो इस जीवा को 10 मिनट 15 मिनट। और ये भी मैं बोल देता हूं, याद नहीं रहेगा, 15-20 मिनट बोलोगे, फिर कोई फोन आ जाता है, काम हो जाता है, लेकिन फिर अपने आप को याद दिलाना, अरे मैं तो वो करना था, महाराज ने होमवर्क दिया था, हाँ फिर करता हूं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 10 दिन तक करके देखना, जीव को कहना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही रटने लग जाएगी, ये अपने आप रटने लग जाएगी। ये होता है अभ्यास, अपने आप में स्वयं अभ्यास कर लेना। हमारे एक बहुत बड़े हमारे गुरुजन हुए, उनका नाम हुआ श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज। हाँ, बड़े वैरागी संत, सब समय भगवान की सब समय जीवन से भगवान का नाम करते, भोग विलास से करोड़ों कोस दूर। एक बार उनकी जीवा को खीर खाने की इच्छा हो गई। अब खीर खाना वो भी भगवान का प्रसाद, कोई बुरी बात है? लेकिन इतने वैरागी हैं कि कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहते, कुछ भी। जीवा को जब खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने क्या किया, लाल मिर्ची पकड़ी मुट्ठी भर और अपनी जीवा पर फेंक दी, खा। कोई लाल मिर्च दूसरे के मुंह में डाल सकता है, कोई अपने मुंह में डालता है? इसको बोलते हैं अपनी ही इंद्रियों पर शासन करना। अपनी इंद्रियों पर अपने आप को समझाना या डांटना। कोई अपने आप को थोड़ा डांटता है, ए पागल, कोई ऐसे बोलता है? बोलते हैं, कोई दूसरे को मारते, कोई बोलता भी है। कोई बोलता है, और बोलना चाहिए। जैसे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, मन को मारो जूता 100 बार। एक वो अमेरिका का भक्त था, वो सही में जूता उठा के सुबह मारने लग गया। अरे ऐसे नहीं, अपने इंद्रियों पर स्वयं शासन करना, मतलब उसको डांटना। उन्होंने लाल मिर्च लेकर जीवा को डाल दी। तेरे को आज खीर खाने की इच्छा है, कल कहेगी तू मालपुआ खाना है, फिर कहेगी हलवा खाना है, ले खा। जितनी बार तू इच्छा करेगी तेरे को लाल मिर्ची खिलाऊंगा। अब जिसके मुंह में मुट्ठी भर लाल मिर्ची आ जाए, कभी वो खीर के सोचेंगे? ऐसे श्री बिलमंगल ठाकुर जी ने अपनी आंखों को ही फोड़ दिया, अपनी इंद्रियों पर शासन कर रहे हैं। इसलिए ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते। इंद्रियों के स्वामी है कृष्ण, और इन्हीं इंद्रियों से उनकी सेवा को ही वास्तव में भक्ति कहा गया है। कोई ये ना सोचे भक्ति का मतलब हाथ ऊपर कर लो 1 घंटा, या फिर पंद्रह मिनट श्वास इधर करो, नाड़ी साफ हो जाएगी, ये भक्ति हो गई। ये सब ड्रामा भक्ति नहीं है। जो भागवत जी कह रही है वो भक्ति है, मैं भी नहीं कह रहा। ये भागवत जी की बात बताई। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवेत्न निर्मलम ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते। भक्ति की डेफिनेशन सिंपली क्या कही गई है? अपनी इंद्रियों से, जो इंद्रियों के स्वामी भगवान, उनकी सेवा करना, ये है भक्ति। बस इतना आसान है, जिसको इतना जटिल बना रखा है लोगों ने, इतना आसान है।
आंखों से भगवान का दर्शन करो। सवे मना कृष्ण पदारविंदयो वाचम सी वैकुंठ गुणानुवर्णय। आंखों से भगवान का दर्शन करने, बताओ आंखें जल गई, नुकसान हो गया, चश्मे लग गए, उतर जाएंगे चश्मे। आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान की कथा, जीवा से भगवान का नाम और फिर भगवान का प्रसाद। प्रसाद सेविते है सकल प्रपंच जाए। हर चीज भगवान को निवेदित करके खाने से, वो प्रसाद खाने से संसार को जीता जा सकता है। उच्चिष्ट भोजन दास्यम तब मायम जैनमी ही। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, मैंने आपके प्रसादी वस्त्र को धारण कर लिया। महाराज जी श्लोक बोलते थे, तब भोक्त सरागंध वस्त्र अलंकृत चर्चिता। भगवान की प्रसादी माला धारण करना, उनका प्रसाद धारण करना और कान में उनका प्रसाद डाल देना। अब ये नहीं सोचना नीचे जाके खीर कान में डालने की बात है, फिर मेरे को पकड़ोगे आपने तो ये कहा था। अरे वो प्रसाद सिर्फ खाने वाला नहीं होता, ये जो कथा आप सुन रहे हो ये भी प्रसाद ही है, जो कान के माध्यम से जा रहा है। ये सबसे बड़ा प्रसाद है। जिसने इस बात को पकड़ लिया उसने भगवान को पकड़ लिया, क्योंकि भगवान इसी प्रसाद से वशीभूत होंगे। सद्यो हृदय अवरुद्धति कृतवी शुष्यभ्य तत्क्षणात्। इसी एक प्रसाद से इतनी दूर जो लगते हैं भगवान, वो नजदीक हैं इसी एक प्रसाद से। जिसने इस बात को पकड़ लिया उसने सारी बात को पकड़ लिया, सार को पकड़ लिया। सद्यो हृदय अवरुद्धति, कौन सा प्रसाद? कान में भगवान की कथा को उड़ेल देना, डाल देना। इसके देखो कान और इंद्रियों का ये महत्व बतलाया। फिर क्या कह रहे हैं? भार परम पट करिट जुष्टम मत्योपा उपयुतो मांग नमेन मुकुंदम शवो करो न कुरुते स्पर्जम हरि लसद कांचन कंकनोवा। अब आ गए मस्तक पर। जो मस्तक भगवान कृष्ण मुकुंद के चरणों में नहीं झुकता, जो मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वो पता कैसा है? उसकी तुलना की गई एक मुकुट के समान। मुकुट कितना अच्छा लगता है ना, सोने का हो, चांदी का हो, लेकिन मुकुट में जीवन है? वो तो मैटर है, इनर्ट है, जड़ीय है। वो सुंदर देखने में तो मुकुट लगता है, लेकिन उसमें शोभा क्या है? क्योंकि वो झुकता ही नहीं, ये मस्तक झुकता ही नहीं भगवान के चरणों में। और जो हाथ भगवान की सेवा में नहीं लगते, ये बड़े ध्यान से सुन लेना, ये तो बड़े ध्यान से सुन लेना। जो हाथ भगवान की सेवा में नहीं लगते वो कैसे है? जैसे कंगन होता है ना, कितना सुंदर लॉकर में रखा है, उसमें हीरा भी रखा हुआ है, लेकिन वो कंगन बोलेगा? भूख लगी तो खाओगे उसको? देखने में तो एक पत्थर ही है, महंगा है भले तो हाथ बिल्कुल ऐसे ही है। इससे हमारे ग्रंथ में बताया, भगवत भक्ति हीनस्या जाति शास्त्र जपस्तप प्राणेशु देहस्य मंडनम लोक रंजनम। एक बड़ी सुंदर कोई कन्या हो, बड़ी सुंदर एक कन्या हो, और वो मर जाए, बेचारी 20 साल की बड़ी सुंदरी है, उसके पूरे शरीर में आभूषण ही आभूषण हो, हाथ में कंगन, कान में इयररिंग्स, चरणों में, उसके पैरों में नूपुर हो, पायल हो, कमर में कंकनी हो, पूरा श्रृंगार किया हो, लेकिन मरी पड़ी है। तो उस मरे हुए शरीर पे वो कंगन शोभा देते हैं? देते हैं? जीवित होते हैं तो शोभा देते हैं ना, होते कि नहीं? ऐसे कहा, भगवत भक्ति हीनस्या, भगवान की भक्ति को छोड़कर, और मैं सार में बोलता हूं, और जितने भी किसी में गुण है, कुछ भी है, उसका कोई मतलब ही नहीं बैठता, कोई संगत ही नहीं बैठती।
वो गुण का महत्व तभी है जब उसमें भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति उसमें जुड़ी हुई हो। तो ये हाथ यदि भगवान की सेवा में नहीं लगते तो ये हाथ बिल्कुल बेकार का कंगन ही है, जो बोलता नहीं, चलता नहीं, ना खिला सकता ना कुछ कर सकता है। अब हाथ से सेवा कैसे होगी? कैसे हो सकती है सेवा? बहुत तरीके से होती है? कैसे होगी हाथ से सेवा? भगवान के मंदिर की सफाई करना, जो अम्बरीश महाराज पूरी पृथ्वी के राजा अपने हाथों से करते थे। करो हरि मंदिर मार्दनेशु। श्री अम्बरीश जी अपने हाथों से, इतना बड़ा राजा, नौकरों से नहीं कराते थे, अपने हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते थे। यह है इस हाथों की सार्थकता। अब आप कहेंगे कि देखो जी हमें आदत नहीं है, मेड बहुत आती है, वही कर लेती है सब काम। अब ना हमारी आदत खत्म हो गई तो इसका मतलब हमारे हाथ हो गए बेकार। आती है ना मेड सबके घर में? झाड़ू पोछा कौन लगाता है? कोई नहीं लगाता आजकल। फिर तो हमारे हाथ बेकार हो गए। अब तो ये सेवा नहीं होगी हाथों से। हो सकती है। कैसे होगी? ताली बजाकर जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन। एक तो ये कीर्तन में अब सब समय थोड़ा कोई कीर्तन करने बैठता है ना? फिर कैसे इस हाथ को व्यवहार करें? हाथ में माला ले लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हाथ से माला भी हो गई। और हाथ से क्या होगा? ठाकुर जी की रसोई बनाओ, है कि नहीं? वो भी सेवा है कि नहीं? राधा रानी नंद गांव में आकर 108 चूल्हे पर श्री कृष्ण के लिए रसोई पकवान बनाती हैं। 108 चूल्हे पर राधा जी अपने हाथों से। ये हाथों की सार्थकता है कि नहीं? है कि नहीं? अरे हाँ तो बोल दो। ये हाथों की सार्थकता हो गई। ठीक है। और हाथों से क्या हो सकता है? आप कहेंगे प्रसाद पाना। प्रसाद पाना भी हो जाता है हाथों से कि नहीं? ये भी हाथों से सेवा हो जाती है। और क्या सेवा हो सकती है हाथों से, जानते हैं? हाँ, श्रृंगार करना अपना। अब सारे काम मंदिर में कोई जा सकता है श्रृंगार करने ऐसे? पुजारी घुसने ना दे किसी को। तो कैसे करोगे हाथ से फिर श्रृंगार? सब अपना ही कर लेंगे। क्या होगा हाथों से, जानते हो? दान करना। हाँ, करो। आज का दिन बहुत अच्छा है, लाओ हाथों से दान करो। ठीक ही कहा आपने, ये भी एक सेवा है, गलत नहीं कहा माता ने। लेकिन एक और बात बताता हूं, भगवान तक हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन उनके भक्तों तक तो पहुंच है। उनके चरणों की सेवा करना, समझ रहे हो? उनके चरणों की सेवा करना, ये भी हाथ की सार्थकता है। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, भाग हैं, जहां पर हाथों की सार्थकता हो सकती है। कीर्तन के समय में दे कर ताली, भजन में बताया ना, सिर्फ ताली बजाने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, नाम करने से, कीर्तन करने से। ये मृदंग बजाते हैं हाथों से, है, ये भी भगवान की सेवा है। करताल बजा सेवा है हाथों से। अभी नीचे प्रसाद होगा। आज तो प्रसाद नहीं है ना, आज निर्जला है ना सबका। आपका तो है। आपको लोगों को बताना भूल गए थे, आज निर्जला है, कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। सब हंस रहे हैं, कह रहे हैं आप जितना मर्जी बोलो, प्रभु जी तो खिला के छोड़ेंगे। तो वो देखो, हाथ से प्रवेशन भी होता है ना, प्रसाद बांटना भी होता है ना। कितने प्रकार से हाथों से सेवा हो सकती है। करना हमें आना चाहिए। समझ रहे हो? अब आप कहेंगे देखो मन नहीं करता, और मन ही सारी इंद्रियों को आदेश करता है। मन नहीं करता माला करने का, मन नहीं करता सेवा करने का। अरे मन की सोच सुनोगे कि भगवान की सुनोगे? मन बड़ा कि भगवान बड़ा?
कल एक माता मिली हरिद्वार में, गंगा के किनारे, भागवत समापन हुई, कल नहीं परसों की बात। कहती मेरा भी बड़ा मन है माला करने का। तो मैंने कहा कर लो। नहीं मैं तुलसी की करना चाहती हूं लेकिन कर नहीं पाऊंगी। मैंने कहा क्यों? मेरे से प्याज नहीं छूटता। मैंने कहा प्याज चाहिए कि प्यार चाहिए? दोनों में से एक चुन लो। एक पलड़े पे रखा भगवान, एक पलड़े पे रखे प्याज, क्या चाहिए? आप बताओ क्या चाहिए? सब कह रहे हो भगवान। प्याज छोड़ दोगे? या तो भगवान को छोड़ दो या प्याज छोड़ दो। और पीछे माता कह रही है प्याज नहीं छोड़ूंगी। भगवान को तो पकड़ा ही नहीं था, छोड़ने में क्या दिक्कत है? और अभी आ गए नवरात्रे, आएंगे ना, नवरात्रि आ गई ना। अब तो 9 दिन तो कोई प्याज नहीं खाएगा, लहसुन भी नहीं खाएगा। क्यों? देवी बिगड़ जाएगी। बेटा देवी नहीं है, देवा भी बिगड़ जाता है। देवी 9 दिन देवी बिगड़ेगी ना। ये जो देवा बैठा है ना, ये भी खूब बिगड़ता है। इसने देवी को मम माया दुरतया, अपनी देवी को माया को लगा रखा है पिटाई करने के लिए। ये बहुत बड़ा देव है। कृष्ण देव भवंतम वंदे। हाँ, ये भी अपनी माया को पीछे लगा देता है। और उस कारण से कभी क्या होता है, 2 दिन का सुख फिर 2 दिन का दुख। माया ऐसे चपेट मारती है जो ऐसे नहीं लगती लेकिन लग जाती है ना। समय हमारा हो गया। सभी माताओं से, भैयाओं से, जितने हमारे अतिथि आए हैं, देखो ये कहना हमारा कर्तव्य था। ये बात नहीं कहेंगे तो हमको दोष लगेगा। और ये बात कह दी तो इसको प्रसाद मान लो, इसको प्रसाद लेके जाओ। ये प्रसाद है वास्तव में। कोई एक बात ऐसी जो लग जाए और उससे जीवन बदल जाए, उसी को ही महाप्रसाद मान लेना जीवन का। आज मेरे को महाप्रसाद मिला। एक तरफ गंदी चीजें हैं, अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, दूसरी तरफ भगवान है। आप सोच लो किसको चुनना है। फिर ये नहीं कहना मैं तो रोज आकर कुछ कहती हूं, आप सुनते ही नहीं हो। वो बहरे हैं। हमको सुनाई पड़ जाता है, उनको सुनाई नहीं पड़ता। पड़ता है लेकिन वो बात फिर सुनते नहीं। क्योंकि बेटा तूने तो प्याज चुना था ना, तूने मेरे को तो चुना नहीं था। मेरे को चुनेगा तो फिर मैं सुनूंगा। तो प्याज को चुना तो प्याज तेरी बात सुनेगा। जा, अभी हमारी चॉइस है, हमने किसको चुनना है। भगवान को छोड़ना है कि संसार को छोड़ना है। बहुत साल पहले एक उदाहरण सुनते थे। एक सन्यासी महाराज, बहुत बड़े साधु, और एक ग्रस्त व्यक्ति, पत्नी, 3 बच्चे साथ रहते हैं। सन्यासी को जाकर प्रणाम किया। सन्यासी ने पूरा लेट कर प्रणाम कर दिया। बोले नहीं 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 महाराज जी क्या करते हो, मैं तो ग्रस्त हूं, मैं तो पत्नी बच्चों के साथ रहता हूं। आप तो सन्यासी हो, वैरागी हो, आपने लेट कर प्रणाम क्यों किया? सन्यासी ने कहा क्योंकि तू मेरे से बड़ा सन्यासी है, तू मेरे से बड़ा वैरागी है। बोलते नहीं महाराज जी आप वैरागी हो, आपने घर बार छोड़ा। तो उसने बोला एक बात बताओ, भगवान बड़े के संसार बड़ा? सन्यासी ने प्रश्न किया उससे, बताओ भगवान बड़े के संसार बड़ा? उसने कहा भगवान बड़े हैं जी, संसार तो छोटा है। ठीक है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो सन्यासी ने कहा देख, मैंने छोटी चीज को छोड़ा, किसको? संसार को, और पकड़ा किसको? तूने तो संसार को, छोटी चीज को पकड़ के किसको छोड़ दिया? ताली बजा रहे? बजा लो, पहले बजा लो। तूने तो भगवान को छोड़ दिया। तू मेरे से बड़ा त्यागी है, तू मेरे से बड़ा वैरागी है। इसलिए भैया जिसने भगवान को छोड़ा, दंडवत उनको। उनको साष्टांग प्रणाम। इसलिए अपने साथ आज ये प्रसाद लेके जाओ। जिद छोड़ दो, अपनी जिद छोड़ दो, उनकी जिद पकड़ लो। बहुत जिद हो गई, बहुत दुख देख लिया, बहुत संकट देख लिए, अब तो बस हार मान लो। अभी भी हार नहीं मानी तो कब मानोगे?
और हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं अपनी हार मान लो, उनको जीतने दो, उनसे आप जीत नहीं सकते हो। और आप चले उनको जीतने, अपनी हार स्वीकार कर लो, उन्हीं की जीत होगी, वो भगवान अजीत हैं। और जब उनकी जीत होगी तो आपकी अपने आप ही जीत हो जाएगी। कैसे जीत हो जाएगी? यही प्रसाद से, कान वाले जे प्रयासो अजीत अजीत असी अपि त्रैलोक्यम स्थाने सिता श्रुति कथा। कथा बैठकर सुनो, इस प्रसाद को लेके जाओ, वो अजीत भगवान आपको ही जीत लेंगे और आप ही उनको जीत लोगे। सिंपल सा प्रोसेस। एकादशी तिथि की श्री सच्चिनंदन गौर हरि की, श्री राधा माधव जी की, श्री राधा माधव गौड़िया मठ की, सभी भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे। कल से हमारी भागवत आरंभ होगी सेक्टर 3 गुरु नानक पार्क, शाम को 6 से 9 बजे। और फिर 9 बजे के बाद सबको भोजन प्रसाद भी मिलेगा। इसलिए चिंता नहीं करना माताओं कि घर में जाकर बनाना ये करना, बल्कि ताले लगा दो, पतियों को बोलो वहीं आ जाओ, हम भी खाएंगे आप भी खाएंगे। मुंह से भी प्रसाद मिलेगा, कान वाला भी मिलेगा और हाथ की ताली वाला भी मिलेगा। ठीक है? कल सेक्टर 3 शाम को कितने बजे? कौन सा पार्क? याद हो गया? चलो, भागवत महापुराण की कुछ करना। सिर्फ बोल दो, आज प्रसाद की सेवा नीरू माता और उनके भाई परिवार इत्यादि ने की है। आज के प्रसाद की सेवा नीरू माता और उनके भैया, उन्होंने सबके लिए प्रसाद की सेवा का आज व्यवस्था की है। मैं तो सोचा था पानी ही मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ आके तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नीरू माता कहाँ है? कहाँ है? दिख ही नहीं रही। और भैया कहाँ है आपके? उनकी भाभी बोल रही है, मैं उधर बैठा। अरे ताली तो बजा सकते हो। एकादशी के दिन में आपने सब भक्तों को ये प्रसाद की व्यवस्था की है। भगवान श्री राधा माधव जी आप पर, परिवार पर पूर्ण आशीर्वाद करें, आपको भी भक्ति में लगाएं और आप भी स्वयं एकादशी का व्रत करें और सबको कराएं। यही हमारी प्रार्थना है और इच्छा है। ठीक है? ऐसे हर एकादशी पे आओ, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, प्रसाद पाओ। कुछ करना है? इतने करना है, घर से यहाँ तक आना है। ठीक है? लेकिन जिसकी सेवा करने की इच्छा है वो नीचे फिर प्रसाद बांट भी सकते हैं, उसके बाद फिर सफाई भी कर सकते हैं, जिसकी जैसी भावना है। हरे कृष्णा। मुकुंद कर दो, कीर्तन कर। भजन होगा अभी? एक कर, मुकुंद दत्त कर दो। माइक है ना? जो आपकी इच्छा। सच्चिदानंद गौर हरि की, श्री गुरुदेव की, एकादशी माधव तिथि की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Sachinanda Jaya Gaura Hari
जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधार विकार गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद